Welcome to maths class. Here I am your Shaista teacher. Today I am going to teach you chapter number 2, real number. But before understanding the concept of real number, let me teach you what is a number line. A number line is like a geometric line. A point its center is selected on the line to be origin. Numbers to the right hand side of origin are called positive numbers, whereas numbers to the left hand side are negative numbers. So here these all are positive integer, whereas these all are negative integers. Is that clear, my dear students? Thus, number line is collection of all positive and negative numbers are more precise a set of integers. Secondly, we know that a set of integers is made out of set of natural number and set of whole numbers. So my dear students, when you read and listen about number line, always remember that it is a set of integer, positive and negative numbers. Secondly, as we all know that it contains natural numbers as well as whole numbers. Remember that a set of integer, always remember that set of integer is denoted by Z and set of whole number is denoted by W and set of natural number is denoted by N. Now, let us understand real numbers concept in detail. The easiest definition of real number are all those number which are plotted on a number line are called real number. For example, 3. 3 is a positive real number. It is plotted on a number line. It is a positive integer. Similarly, -3. It is also called as a real number. It is also plotted on a number line. It is a negative integer. Now, what about 2.5 and -2.5? Well, they both are real numbers because we can plot them on a number line. Okay. Now, my dear students, what about 25 upon 100 that is equal to 0.25? Can you guess it? Well, 25 upon 100 is written as P upon Q form, where P upon Q cannot be equal to 0, and this 0.25 is an example of terminating decimal. Now, what do you understand when I say what is terminating decimal? A decimal which has finite number of digits and its decimal part. So 25 upon 100 is a number which we can write in P upon Q form. Thus, it is a rational number. So we can plot this 0.25 on a number line. So 25 upon 100 is a real number. Similarly, -25 upon 100 that is equal to -0.25 is also a real number because we can plot this on a number line. Well, my dear students, we learned that all rational numbers are real numbers. All rational numbers are real numbers because we can plot them on a number line. Thus, all rational numbers like 1 upon 3, 2 upon 6 or 200 upon 3 are real numbers. Finally, what about root 2? Root 2 is a real number or not? Well, root 2 that is equal to 1.414213 and so on. Remember, my dear student, that the digit after the decimal point do not in this kind of a number are called as non-terminating decimal numbers. Secondly, this number cannot be written as P upon Q form. Numbers which has non-terminating cannot be put into P upon Q form are called as irrational number. Now, my dear students, question arises that can we plot this 1.414213 on a number line? Well, the answer is yes, it is possible. It can be plotted 1.414213 on a number line. From this example, we learned that irrational numbers like root 3, root 7, pi. Remember that pi is an irrational number, hence it is
also a real number. Now, to summarize my lecture, we learned that collection of all positive integers, negative integer, a set of whole number and a set of natural numbers. Secondly, we learned that all numbers that can be plotted on a number line like 0 are all real numbers. Lastly, we also learned that all rational and irrational numbers are real numbers. So this all are about real numbers introduction. Now my dear students, let's solve practice set 2.1. Practice set 2.1. Question number 1 says that classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. Here in this question there are total 5 sub questions, and here we have to say that we have to classify the decimal form of the given rational number, and we have to say that which are terminating and which are non-terminating recurring type. Okay, here question number 4 and 5 are deleted from 25% reduced syllabus. Now we are going to solve all these 3 questions one by one, but before solving these 3 questions, let's solve few basic example to understand this. Okay, so let us understand prime factor first. I know very well that you all are must knowing about what is prime factors. So first we will take few example of prime factor. Okay, we will understand this concept and then we will solve all these sub question. Question number 1, 2 and 3. So first understand prime factor of 4. Okay, then second one is 10 and third one is here 4, 10 and third one is 25. Okay, so one by one we will see the prime factor of this. So first let us take the example of 4. So as you all know that here हम लोग पहले 4 का प्राइम फैक्टर देखेंगे, फिर 10 का देखेंगे एंड लास्टली 25 का. ऑन द बेस ऑफ दिस वी विल सॉल्व ऑल दिस 3 सब क्वेश्चंस. सो फर्स्ट 4 का प्राइम फैक्टर देखना है, फिर 10 का प्राइम फैक्टर देखना है एंड देन 25 का प्राइम फैक्टर देखना है. एज यू ऑल नो दैट 4 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 2 ज़ 4 है. ओके, 2 के टेबल में 4 है ना, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ 4 एंड नाउ 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4 and 2 1 ज़ 2. So here we will write 2, 2 1 ज़ 2. Okay, as you can see here that 4 का प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2. 4 is equal to 2 multiply by 2, that is the prime factor. Okay, so 2 multiply by 2. See the common 2, 2 into 2 है, that means वो terminating हुआ. Is that clear? और अगर कॉमन नहीं आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अभी 10 का प्राइम फैक्टर 2 5 ज़ 10. अब आप देख सकते हो 2 5 ज़ 10 में 5 1 ज़ 5. यहाँ पर 2 जैसे 2 2 ज़ 4 था, फिर 2 1 ज़ 2 कॉमन नंबर आ रहा था, यहाँ पर 5 1 ज़ 5 आ गया. ओके, 2 5 ज़ 10 एंड 5 1 ज़ 5. सो हियर 2 into 5. Okay, both are different numbers, so they are non-terminating. If equal number they are terminating, if not equal number then they are non-terminating. Now 5 5 is 25 and 5 1 is 5. Again equal number, they are terminating. 25 is equal to 5 into 5, 25. So 5 into 5, 25 common number, that means they are terminating number. Okay, and first one and third one is terminating and second one is non-terminating. Is that clear, my dear students? So simple and easy to understand now. Yes, on the base of this we will solve other 3 sub questions. Okay, this was a very little example to understand this concept clearly. Okay, so as you all know that this 4 का जो है प्राइम फैक्टर 2 है, यहाँ पर 2 into 5 both are different, so we will take here 5 and lastly 2 comma 5. Okay, because here we are taking common prime factor, so 2 is the common and now here 5 5 is the common. Okay, so 4 और 10 से 2 मिल रहा है और 10 और 25 से 5 मिल रहा है. So here 2 और 5. Okay, or we can say 2 multiply by 5, that is equal to 2 5 ज़ 10. कैसे मिला? क्योंकि 4 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 था तो हमने वहाँ से 2 लिए, और 2 5 ज़ 10 था तो वहाँ पर भी हमको 2 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है. सिमिलरली 5 5 ज़ 25 से भी है, सो 2 5 ज़ कितना आता है? 10 आता है. इज दैट क्लियर? सो 2 5 ज़ 10. सो हियर एज यू कैन सी, yes, so here we will write 2 5 ज़ 10. so terminating है,
यस क्योंकि टर्मिनेटिंग इसलिए बिकॉज अगर कॉमन रहेगा तो टर्मिनेटिंग है, नॉट कॉमन रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन वन बाय वन. यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है. ओके, देन यहाँ पर 5 है. ओके, 2,5 और वी कैन से 2 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 10 एंड दे आर टर्मिनेटिंग. इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया. Do you find any difficulty to understand this concept? I hope you understood this concept very nicely. Yes, my dear students, are you all getting what I am saying? Yes. So now we will solve all these sub question one by one, where we have to classify whether the given sub questions are terminating or non-terminating recurring type. Okay, so we will solve all this. So firstly, here as you can see here 13 upon 5 is given. Okay, I erase this and now we will solve this sub question 1. 13 upon 5. Okay, let's solve this one. 13 upon 5. Now here denominator is 5. We have to classify the decimal form by given rational number into terminating and non-terminating recurring type. Okay, so here we will use P upon Q. As you all know that this all three sub question are given in a P upon Q form. That means rational number form. Okay, they all are rational number. Rational number says that P upon Q where Q cannot be equal to 0. After dividing we cannot get 0 because question says that after dividing we get a decimal number 13 by 5. Okay, after dividing we get any number which have decimal number. Okay, so decimal point we will get here. So 13 by 5. So here question says that we have to classify and we have to tell that whether the given number is a terminating or non-terminating number. Okay, so let's solve this 13 by 5. As you all know that 13 is the numerator and 5 is the denominator. Okay, so it is written by P by Q form. Okay, it is written in a form of P by Q. So 13 is the numerator. Okay, 13 is the numerator and 5 is the denominator. For your understanding I am writing here this. ओके, नीचे का जो नंबर रहता है वो डिनोमिनेटर रहता है, ऊपर का जो नंबर रहता है वो न्यूमरेटर रहता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट. ओके, अभी यहाँ पर जो 5 है वो देख सकते हो आप 2,5 है. ओके, 2,5 है दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है. ओके, 5 1 ज़ा 5 है ना, 5 कौन से टेबल में डिवाइड होगा? सो 5 1 ज़ा 5. अभी हम लोग इसका प्राइम फैक्टर देखेंगे तो क्या आएगा? 5 1 ज़ा 5. ओके, 5 1 ज़ा 5. इज इट क्लियर? और लास्ट में 5 1 ज़ा 5 मिल गया, 1 का तो 1 ही आएगा. ओके, सो 5 का क्या है? 5 ही है. ओके, दैट मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग. ओके, टर्मिनेटिंग नंबर. सो यस, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर. आपको दिख रहा है जैसे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है. ओके, डिनोमिनेटर से ही हमको पता चलने वाला है, न्यूमरेटर की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, सो नाउ अभी हम लोग इसको दूसरे मेथड में भी कर सकते हैं. 13 को आप इनसाइड लिखो, 5 को बाहर लिखो. ये कॉमन मेथड है, आप सबको पता है. 5 2 ज़ा 10 करना है. आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट हियर 3. डेसिमल पॉइंट का यूज़ करो, यहाँ पर 0 लगाओ. अभी आपको पता है 5 6 ज़ा 30 आता है. रिमाइंडर अगर जब आपको 0 मिल रहा है, जब आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा. 13 upon 5 इज इक्वल टू 2 upon 6 इज द आंसर. हैंस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, so we will write here is equal to terminating. Yes, it is a terminating type. Is that clear, my dear students? So simple and easy to solve sub question 1. Yes, my dear students, so this is final answer for sub question 1 and sub question 1 is a terminating number. So simple and easy to understand. 2 into 5 that is terminating. Yes, my dear students, so 2 into 5 which give us 10, so 13 upon 5, 2 into 5 that is terminating. And after dividing we have to check only the denominator. Okay, so if it is 5 terminating, if it is 2 then terminating. Is that clear? So now let's solve other. So now here 2 by 11 is given. So now sub question 2 we are solving here. Sub question 2 by 11. So 2 is the numerator and 11 is the denominator. Okay, here 2 is the numerator and 11 is the denominator. So we will focus on denominator, that is 11. Denominator is equal to 11. Now let's check the prime factor of 11. Okay,
let us check the prime factor of 11. As you all know that 11 is an odd number, 11 is a prime number, so 11 divide by 11 itself. So 11 ones are 11, 1 ones are 1, so 11 is equal to 11 into 1. ओके 11 इंटू 1 दैट इज़ 11. ओके 11 खुद के ही टेबल में डिवाइड होने वाला है, तो ये दोनों नंबर नहीं है, ना 2 है ना 5 है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. देखो ना यहाँ पर 11 है आ रहा है आंसर, लेकिन हमको टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए, या तो 2 या तो 5. अगर 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 और 5 नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो हियर वी विल राइट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. Okay, here we will write non-terminating recurring type. Is that clear? Now हम लोग सेकेंड मेथड भी इसका देखेंगे. जैसे आपको पता है आप लोग यूजुअली डिवाइड करते हो ना, वैसा डिवाइड करके देखो. सेकेंड मेथड बहुत सिंपल है. ठीक है, तो अभी 2 जो रहेगा वो हम कहाँ लिखेंगे, इनसाइड लिखेंगे, 11 आउटसाइड. ठीक है, न्यूमरेटर ऑलवेज गो इनसाइड एंड डिनोमिनेटर आउटसाइड. सो 11 ग्रेटर नंबर है तो 11 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा के करना है. तो 11 के टेबल में 11 1 ज़ 11, 20 को डिवाइड करें तो 9 बचा. 11 के टेबल में 11 8 ज़ 80, 90 में से 80 गया तो 88 गया तो 2 बचा. ओके, नाउ वापस से 0. अभी वापस से देखो सेम नंबर आएगा, 11 1 ज़ 11, फिर वापस 8 आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट हियर 8. ओके, 20 माइनस 11 9. ओके, सो 11 8 ज़ 88. ओके, सेम नंबर 1 8 1 8 1 8. ओके, 0.18 0.18 0.18 18 18 18. ओके, goes on. So it is non-terminating recurring type. So simple and easy to understand. देखिए अगर 2 और 5 है ना तो ही टर्मिनेटिंग है, अगर 2 और 5 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. आपको प्राइम फैक्टर चेक करना है माय डियर स्टूडेंट्स. जस्ट चेक द प्राइम फैक्टर. डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर देखो, अगर 2 और 5 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है. जैसे 0.181818 था तो 1818 रिकरिंग हो रहा था, तो 0.18 के ऊपर बार दे देंगे. जो लाइन दिख रही है ना आपको, उसको कहते हैं बार. तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. इज दैट क्लियर? सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. सो this question number 2 is done. Sub question 2 is done. Now let's solve sub question 3. Okay, so here again always remember that you have to take the denominator. Okay, before solving you have to take the denominator prime factor, and if it is 2 and 5 then only it will be terminating, and if it is not then it will not terminating recurring type. Is that clear? Now let's solve last sub question, that is sub question 3. 4 and 5 is deleted from your portion. Okay, so let's solve sub question 3. Sub question 3 says that 29 upon 16. 29 is the numerator, 16 is the denominator. So we will write here 16 denominator. Denominator is equal to 16. Now let's take the prime factor of 16. Okay, as you all know that 16 2 8 is 16. Okay, 16 is divided by 2, so 2 8 is 16. Now 2 4 is 8, 2 4 is 8. Now here 8 and here 4, 2 2 is 4. Now here 4, 2 2 is 4. Now 2 1 is 2. Yes, we have 2. If we have 2, that means it is a terminating. Question says that we know that ना अगर 2 है और 5 है तो ही terminating होगा. So 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2. 4 times we will write this 2. 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16. Yes, we have 2. That means it is a terminating. Terminating. Okay, we will write here terminating. So simple and easy to understand. Now let's solve the another method. Okay, same question but next method. So here 29 go inside and 16 comes outside. Okay, 16 comes outside and 29 go inside. So divide this 29 upon 16. So here, so we will do here division. Second method we will apply here, 29 inside and 16 outside. 16 1 is 16 because 16 2 is 32. So 29 minus 16 is, yes, how much? 3. Okay, now here 1 13, 1 3 13, and now here give here point and 0. Now 16 stable where 130 lie. So 16 1 is 16, 16 8 is
16 8s are how much? For 128. Okay, 16 8s are 128. Now after subtracting we get here 2. Now again take 0. Now 16 ones are 16. Okay, now subtract this, we get here 4. 20 minus 16, 4. Now put here 0. 16 16 table, 16 twos are 32. Now subtract this, we get here 80. 16 fives are 80. Yes, subtract this, remainder 0 0. So here we have 1.8125. Okay, so yes, this is a terminating number because we are getting remainder 0. As you all know that if we get remainder 0, then it means it is a terminating. And here, if while doing prime factor, if we get 2 or 5, then it means it is a terminating number. Okay, so 29 upon 16, that is equal to 1.8125 is the decimal form of the given rational number into terminating type. Okay, so here terminating type. So we will write here terminating type. Okay, this is a terminating type. Sub question 1 was terminating, sub question 2 was non-terminating, and 3 was terminating. Is that clear, my dear students? So simple and easy to understand. Now let's solve question number 2. Write the following rational numbers in decimal form. As per 25% reduced syllabus of 2021 and 22, sub-question 4 and 5 are deleted. Now here we will solve sub-question 1, sub-question 2 and sub-question 3 one by one. Now let's solve sub-question 1. 127 upon 200. 127 is the numerator and 200 is the denominator. Let's divide and check whether it is a decimal form. Okay, we have to solve this in a decimal form. So we will apply here two methods. Okay, whichever convenient to you, you can apply. So method number 1 says that 121 upon 200. So 127 is the numerator. Sorry, I said that 121, but it is written as 127. 127 upon 200. So 200, 2 multiplied by 100, that is 200. 2 multiplied by 100, that is 200. And now here 127. डिनोमिनेटर में 2 आ गया है. 2 1 से 2. 2 के टेबल में 127 नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट का नंबर 7 है और 7 ऑड नंबर है. डिवाइड करके हमको यहाँ मिलेगा 63 पॉइंट हियर 7 है. 7 तो आ नहीं सकता, आपको पता है, तो हम यहाँ पर लेंगे 63.5. ओके, एग्जैक्टली अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा 63.5 है. सो 63.5 अपॉन 100 अगर हम लेते हैं तो हमको उसका आंसर आएगा, यस, ये 2 zeros जो है ना वो 2 नंबर के बाद पॉइंट देंगे. ठीक है, तो 6.35 हो जाएगा. 63.5 का आंसर हो जाएगा. ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा. याद रखना, डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा क्योंकि 100 है ना, इसीलिए. और 100 में कितने ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है, तो 1 2. तो आप यहाँ पर 1 नंबर के बाद पॉइंट ले लो. ठीक है, और ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से रिमूव कर सकते हो. ओके, सो अगर वो डेसिमल पॉइंट वहाँ से रिमूव हो जाता है तो ये 2 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, यानी कि 6.35 हो जाएगा. ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पर 0 पॉइंट ऐसा हमको लेना है. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे 100, तो 1.00. ओके, 1.00 2 नंबर्स के बाद, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसी है ना, तो 635. ओके, और आगे इसके आएगा 0. ओके, सो सिंपल एंड ईजी टू सॉल्व. सो 0.635. इज़ दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ये एक तरीके का मेथड है और एक इसके साथ और भी एक मेथड है. ठीक है, तो पहले यहाँ पर ये देखिए 0.635 आ चुका है. ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग दिस वो 2 zeros वहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर आंसर मिलता है हमको 0.635. ओके, 0.635 इज़ द आंसर. तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है. या तो ऐसा सॉल्व करो या तो एज़ यूजुअल जैसा आप डिवाइड करते हो वैसा सॉल्व करके देखो. ओके, बट डेसिमल फॉर्म में ही इसको सॉल्व करना है. तो आई थिंक आपको सेकेंड मेथड ईजी पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट मेथड की भी प्रैक्टिस अच्छी करो. ओके, तो इसका सेकेंड मेथड भी है 127 अपॉन 200. सो 127 इनसाइड. ओके, हमेशा याद रखना न्यूमरेटर इनसाइड होता है और डिनोमिनेटर आउटसाइड. तो 200 के टेबल में 127 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर 0 लेके
पॉइंट लगा देंगे, ओके, 0 पॉइंट करेंगे। 200 के टेबल में 200 1 ज़ 200, 200 2 ज़ 400, 200 3 ज़ 600, ओके, 200 4 ज़ 800, 200 5 ज़ 1000, ओके, 200 6 ज़ 1200, ओके, लाइक दिस। सो पहले यहाँ पर हम लोग ये नंबर्स लिख के ले लेते हैं 200 का टेबल, ताकि हमको शॉर्टकटली इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। 600, 800, देन 1000, देन 1200, ओके। तो हाँ, यहाँ पर 1200 मैंने लिखा है, ओके। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। 200 3 ज़ 600 नहीं ले सकते हम लोग को, पहले 127 बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, और 200 काफ़ी बड़ा है उससे, तो हमको 0 पॉइंट का यूज़ करना है, ओके। सो 0 पॉइंट का यूज़ करना है और सॉल्व करना है, ओके। सो 0 पॉइंट का यूज़ करके देखना है हमको ये नंबर कब मिलता है, क्योंकि 207 से तो 1400 आएगा, तो 206 लेंगे। 0.6 ज़ 200, क्योंकि 127 छोटा है और 200 बड़ा नंबर है, तो 127 माइनस 0 127। अभी यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट लेंगे और इसके आगे 0 ऐड करेंगे। 127 के आगे 0 ऐड किए तो 1270 हो गया। इधर डेसिमल पॉइंट दीजिए। नाउ 206 ज़ 1200 लेंगे। 206 ज़ 1200, okay. Now let us subtract this. We get here 700. 1270 में से 1200 गया तो 70 बचा, ओके। अभी 70 है तो अभी देखना है 70 कौन से टेबल में आता है, नहीं पता है। 70 तो कोई टेबल में नहीं आता है, 700 है, डेसिमल पॉइंट लेके है तो 700 हो गया। 200 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है, 600। 200 इंटू 3 कितना आया, 600। चलो डिवाइड करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करके देखो, इधर मिलता है हमको 100, ओके। यस, 7 माइनस 6 100। ना अभी वापस से इधर पॉइंट है तो 0 इंक्लूड करो, तो 200 के टेबल में 1005 आता है, 1005 आता है, ओके। तो इधर आया 1000। 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000, सब्ट्रैक्ट करो, 0 0 0 0। सो आंसर कितना आया, जो क्वेश्चन है वही हमारा आंसर है। सो इधर 127 अपॉन 200 दैट इज इक्वल टू 0.635 इज द आंसर, 0.635। सी बोथ द मेथड हमको सेम आंसर मिल रहा है, 0.635। या तो वो करो या तो ये करो। मेरे ख्याल से आपको सेकंड वाला इजी पड़ेगा, बट जिन बच्चों को फर्स्ट वाला स्टेप इजी पड़ता है तो फर्स्ट स्टेप के साथ सॉल्व करो, नो मैटर, दोनों भी करेक्ट है, ओके। तो चलिए इसी के साथ हमने सब क्वेश्चन 1 कंप्लीट किए हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन 2, दैट इज़ 25 अपॉन 99, ओके। I erased all this sub question 1 का part. Now we will solve sub question 2. So 25 upon 99. 25 is the numerator, 99 is the denominator. So again वही first method देखेंगे, जो आपको easy लगता है वो apply करो। 25 upon 99. Okay. So let's solve. 25 is the numerator and 99 is the denominator. As you all know that 25 और 99 ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 25 भी आता हो और 99 भी आता हो, ठीक है। कोशिश यही करनी है कि दोनों भी एक ही सिमिलर टेबल में डिवाइड हो सके, ओके। तो 5 के टेबल में तो आता है 25 और वो 11 के टेबल में आता है, तो 99 1 ज़ा 99, 99 2 ज़ा पहले डिवाइड लिख के ले लो, 99 3 ज़ा 99 4 ज़ा 99 5 ज़ा, ओके, 99 6 ज़ा, ओके, 99 5 ज़ा तक ही लो, 6 पे मत जाओ। चलो अभी इसका आंसर कितना आता है, 99 1 ज़ा 99 2 ज़ा 9 1 ज़ा 9 ना, तो 99 1 ज़ा 99, 99 2 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। सो यहाँ पर यस 99 3 ज़ा 99 4 ज़ा एंड 99 5 ज़ा, ओके। सो 99 1 ज़ा कितना आएगा, 99, 99 2 ज़ा यस 198, 99 3 ज़ा, ओके। ऐसा मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हो आप लोग, ओके। अगर आपको इतना बड़ा टेबल नहीं आता है, वो ट्रिक्स नहीं है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देखो। 99 3 ज़ा 297, ओके, 99 4 ज़ा, फिर देखो 99 4 ज़ा कितना आता है, सो 99 4 ज़ा 396, 99 5 ज़ा 495, यस।
सो अभी आपको पता है 99 5 495 है। ओके, तो अभी इन टेबल्स का हम लोग यूज़ करेंगे 25/99 को सॉल्व करने में। ओके, तो आपको पता है हम लोग सेकेंड मेथड ही अप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट मेथड हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट पड़े। तो 25 जो अंदर का ऊपर का नंबर है वो अंदर जाएगा, नीचे का नंबर बाहर, डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर अंदर। 99 ग्रेटर है इसलिए 25 स्मॉलर है इसलिए उसको 0 पॉइंट लेके सॉल्व करेंगे। तो इधर 250 हो गया, पॉइंट देंगे तो 250 हो गया। अभी 99 के टेबल में 250 नहीं आता है तो देखो 297 ग्रेटर है, 3 है, तो 99 2 लेंगे। 99 2 198। ओके, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? यस 52 है। ओके, 250 माइनस 198 को सब्ट्रैक्ट किए तो 52 मिला। 52 जो है वो स्मॉलर नंबर है और 99 ग्रेटर है, तो अगेन इसके आगे ज़ीरो दे दो। 520 हुआ जो कि अगेन बड़ा नंबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 99 5 495। ओके, सब्ट्रैक्ट करो इसको। नाउ 520 में से 495 गया तो कितना सब्ट्रैक्ट करके मिलता है हमको? ओके, 99 5 करे 490 लिए तो सब्ट्रैक्ट करके मिला। 520 में से 490 गया तो 25। ओके, लेकिन उसके आगे और ज़ीरो लगाए क्योंकि 99 ग्रेटर नंबर था और 25 स्मॉलर, तो 250 हो गया। अब 250 नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे? यस 198 लेंगे। 99 2 198, 99 2 198। देखो ना, ये नंबर 250 और ये 250 अगेन सेम आ रहे हैं। ओके, डोंट यू फील कि ये रिकरिंग नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है। 250 250 अगेन आ रहा है। ओके, अगर हम लोग वापस से इधर लेते हैं 99 2 198 तो हमको वापस से 52 मिलेगा। ओके, फिर वापस से हमको सेम प्रोसेस हमारा आगे जाएगा, यानी कि 25 जो है वो क्या होने वाला है? कंटिन्यूएशन में रिपीट आने वाला है, रिपीटेटिव फॉर्म में आने वाला है। तो यस इट इज़ अ रिकरिंग। तो सो ये 25 क्या है? बार बार रिकरिंग है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का नंबर है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25/29। ओके, 99 25/99 दैट इज़ इक्वल टू 0.25। उसके ऊपर बार दे देंगे। ओके, 0.25 डॉट 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 भी दे सकते हो या तो ऊपर ऐसा बार लगा दो। ओके, 0.25 इसका मतलब होता है ये किस टाइप का नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब ये बार बार सेम नंबर आपको रिपीटेटिवली मिल रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। Is that clear, my dear students? So simple and easy to understand this kind of a sums. Yes, चलिए अभी इसे इरेज करते हैं और सब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। ओके, सो सब क्वेश्चन 3 सेज दैट 23/7। 23 यहाँ पर जो है ना, सब क्वेश्चन 3 में 23 न्यूमरेटर है और 7 जो है वो डिनोमिनेटर है। आई बात समझ में? तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो आपको पता है यहाँ पर 23 का टेबल मैं लिख के लूँगी जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा था। तो 7 का टेबल लिख के लेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना उसका टेबल। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 है जो कि 23 से बड़ा है, उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन हम ले सकते हो 7 5 35 भी लो, 7 6 48 लो, एक काम करो ले लो। ठीक है, आपको पता है ना, तो लिख लो 7 10 70 तक, 7 7 49, 7 8 56। और ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है लिखना। ठीक है, 7 9 63 और 7 10 70। ओके, चलिए इतना नंबर ले लेते, काफ़ी इनफ है हमारे लिए, हमारे टेबल्स को यूज़ करने के लिए। अगर 4 तक होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके आगे भी ले सकते हैं हम लोग क्योंकि डेसिमल फॉर्म है। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। आर यू ऑल रेडी? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड ही अप्लाई करेंगे, फर्स्ट नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि मालूम है आपको ईजीएस्ट मेथड यही पड़ेगा। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, क्योंकि 7 4 28 तो काफ़ी बड़ा है 23 से, तो 7 3 21 लेंगे। सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। 23 माइनस 21 2। अभी ये 2 जो है वो 7 से काफ़ी छोटा है, तो इसके आगे डेसिमल पॉइंट डाल के इधर 0 ले लो। 20 हो गया। 7 1 7, 7 2 14 लेंगे क्योंकि 21 20 से बड़ा है, सो 7 2 14 लिए। अब सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 6 आएगा। ओके, अभी इधर 0 डालो। ठीक है, 7 8 56, क्योंकि 6 छोटा था, 60 हो गया। 7 8 56 लेंगे। ठीक है, 7 8 56। अच्छा हुआ ना पूरा टेबल लिखे हमने। ओके, इसलिए कोशिश करो ज़्यादा लिखने की। 60 में से 56 गया तो 4। ओके, 40, क्योंकि 4 स्मॉलर है इसलिए 40 कर दो उसको। ठीक है, सो एज यू नो डेसिमल लिए ना हमने, यूज़ करो 0 डाल के। 7 5 35। ओके, 40 में से 35 गया तो कितना बचा? 5 बचा।
ओके। अब वापस से 5 छोटा है तो 0 डालो उसके आगे। 7 के टेबल में 49 लेंगे, 7 7 ज़ा 49, क्योंकि 49 एक नंबर छोटा है ना, तो वो उसी को ले लो। 7 7 ज़ा 49। चलो अभी डिवाइड करो, माइनस करो, 1 बचा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 0, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, क्योंकि 50 में से 49 गया तो 1 बचा, और इधर 1 जो है वो काफ़ी छोटा है तो उसके आगे 0 लगा दो, ठीक है। तो 10 हो गया। 7 में 10 बड़ा है, ठीक है, तो अभी 10 इधर लिखो, जगह नहीं थी ना इसलिए मैं आगे ऊपर ले रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अभी माइनस करो, कितना बचा, 3, ओके। 10 - 7 3 बचा, ठीक है। अभी 3 जो है वापस से 7 से छोटा है इसलिए उसके आगे 0 दे दो। 7 4 ज़ा 28 लो, क्योंकि 30 से छोटा नंबर 28 है, तो 7 4 ज़ा 28 लो, क्योंकि 30 है नहीं इसलिए 7 4 ज़ा 28 लिए। सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, ओके। अभी देखो, आप देख सकते हो वापस से ये 20 वाला 2 रिपीट हो रहा है, 20 वाला 2 रिपीट हो रहा है। देखो सेम नंबर वापस से हमारी गाड़ी जो है वो एक ही जगह पे आ गई है, 20 20 मैच कर रहा है, ओके, दिख रहा है ना आपको। तो ये 2 8 5 7 1 4 रिपीट होने वाला है, 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4। सो वापस से वही सेम नंबर आने वाले। देखो यहाँ पर 20 तक सिमिलैरिटी आ चुकी है, ओके। तो अभी वापस से अब 7 2 ज़ा 14 लेंगे, फिर वापस से वो 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसी ही प्रोसेस बार बार रिपीट होगी। तो अगेन दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, बिकॉज 3.28 5 7 1 4 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 23/7 इज इक्वल टू 3.28 5 7 1 4 एंड सो ऑन, ओके। या तो उसके ऊपर बार भी दे सकते हो, 28 5 7 1 4 के ऊपर। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो नंबर है वो यहाँ पर रिपीट होने वाले, 28 5 7 1 4, ओके। फिर वापस से 28 5 7 1 4, 28 5 7 1 4, ये जो नंबर है ना 28 5 7 1 4 वो गोज ऑन है, बार बार रिपीट होने वाले। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है, तो इसके ऊपर बार दे दो, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किए थे। सो सिंपल एंड ईजी टू सॉल्व। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सब क्वेश्चन 4 और 5 रिड्यूस किया गया आपके 25% रिड्यूसिंग सिलेबस से, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 था, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 और 5 को रिड्यूस किया है बोर्ड ने, तो उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। सब क्वेश्चन 1 2 और 3 सॉल्व करना है। सब क्वेश्चन 3 सेज दैट राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म, ओके। P/Q फॉर्म में लिखना है इसको। रैशनल नंबर का मीनिंग ही है P/Q। सो 10/3, ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ 10/3। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। 10/3 जो है ना वो P/Q के फॉर्म में है। ये सिर्फ आपके लिए एक्सप्लेनेशन है, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो 10/3 को हम लोग कैसा लिखेंगे, तो 10 जो है वो न्यूमरेटर है, 3 जो है वो डिनोमिनेटर। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। माइनस करो, कितना बचा, 1। वापस से सेम आया नंबर, तो डेसिमल पॉइंट दो और फिर बाद में इधर 0 लगाओ, ओके। उधर ऊपर डेसिमल पॉइंट दो 3 के बाजू में, 3 के नेक्स्ट में डेसिमल है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ओके। 10 में से 9 गया तो वापस 1 बचा, ठीक है। फिर वापस से 3 3 ज़ा 9, ठीक है। मतलब ये .3333 जो है ना वो गोज़ ऑन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, 3.33, ऊपर 33 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये भी एक टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, तो ये देखो ये ना 3.33 जो है ना ये गोज़ ऑन सेम है, ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब कंटिन्यू है ये। तो यहाँ पर 10/3 जो है P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, रैशनल नंबर फॉर्म में। इसका आंसर है 3.33 और 33 के ऊपर बार दे दो या तो डॉट 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 लगा दो, ठीक है। यानी कि ये गोज़ ऑन है, रैशनल नंबर है ना। तो 10/3 इज इक्वल टू 3.33, ओके, 3.3। और देखो ना यहाँ पर ये 3 तो गोज़ ऑन है ना, आपको पता भी है। तो 3 के ऊपर ऐसा एक पॉइंट लगा लो, क्योंकि एक सिंगल नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर डबल नंबर रहते 34 रिपीट होते तो बार लगा लेते, लेकिन अब ये 3 है ना, तो इसलिए हम लोग उसको एक सिंगल पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो 10/3 इज इक्वल टू 3.3, डॉट, ऊपर 3 के ऊपर डॉट लगा दिए। आई बात समझ में? सो सिंपल एंड ईजी टू सॉल्व सब क्वेश्चन 1 माय डियर स्टूडेंट्स। यस, तो इसी तरह से आपको ये बाकी के 3 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3.3 बार, ओके। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो P/Q के फॉर्म में इसको लिखना होगा ना हमें, P/Q के फॉर्म में। तो P/Q के फॉर्म में लिखा है, यानी कि 10/3 के फॉर्म में लिखा है, ओके।
तो 3.3 बार मतलब क्या है, 10/3 है। सो सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू फाइंड ईजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ सम्स? तो चलिए अभी एक एक करके ये बाकी के 3 भी सॉल्व करते हैं, जो बहुत ईजी है। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा ना 10/3 का, तो ये बाकी के 3 सम्स आपके लिए कुछ नहीं है, आप लोग तब ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू ऑल रेडी टू सॉल्व ऑल दिस 3 क्वेश्चंस? यस, क्योंकि 4 और 5 तो ओमिट है। ओके, बोर्ड ने रिड्यूस किया है सब क्वेश्चन 4 और 5, तो इजंट इट गुड न्यूज़ फॉर अस? यस। तो चलिए बाकी के जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 1, 2, 3, तो हम लोग इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ओके, आर यू आर रेडी? तो चलिए मैं इसे इरेज करती हूँ और हम लोग सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन 1, दैट इज़ 0.6 और उसके ऊपर दिया हुआ है डॉट। ठीक है, तो 0.6 को मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, क्योंकि यूनिट 10 है, यहाँ पर यूनिट 10 100 है, यूनिट 10 100 सी है 3 डिजिट्स नंबर, यहाँ पर 3 डिजिट्स है ना, यूनिट 10 100 1000। ओके, सो हियर 100, ये बाकी ये थाउजेंड्स वाला तो लेंगे नहीं। यूनिट 10 100, यूनिट 10 100, 3 डिजिट्स के लिए 100 रहेगा, 4 डिजिट्स के लिए ऐसा। ठीक है, अब देख सकते हैं ना, पॉइंट के बाद 20, पॉइंट के बाद 2 नंबर से तो 100 से, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आते हैं तो 1000 से। देखिए मैं यहाँ पर इसको भी सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस को, ताकि आपको आइडिया आए। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स है तो 100, पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है तो 10। 0.6 ओनली 1 डिजिट था तो 10 आया। ठीक है, 1 डिजिट के लिए 10, 2 डिजिट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स रहेंगे पॉइंट के बाद तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी माय डियर स्टूडेंट, 2.514 था, इसीलिए वो 514 को 1000 से किए थे, लेकिन 15.89 उसमें 89 2 डिजिट्स था तो 100 से मल्टीप्लाई किए। 0.6 में ओनली 1 डिजिट था पॉइंट के बाद तो 10 से। 0.6 ऊपर पॉइंट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट इज़ इक्वल टू 10/6। ओके, क्या लिखेंगे इसके अंदर, P/Q। ओके, P/Q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है ना, क्वेश्चन बोला भी है, तो यहाँ पर आपको पता है जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपको पता है इसको कैसा लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे यस x। ठीक है, इसके लिए x के लिए क्या आएगा 0। ओके, x के लिए 0 और यहाँ पर लिखने 0.6 और इधर बार। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 0.6 और ऊपर डॉट दे देना। ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो कंटिन्यूएशन में है, 6 6 6 6 कॉमन नंबर आने वाला है, तो ये फर्स्ट हुआ 0.6 डॉट। अभी इसके आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 10 है क्योंकि ओनली 1 डिजिट्स है ना, 0.6 ओनली 1 डिजिट है, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर, नाउ मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड हमको लेना है, तो इधर क्या आएगा, x जो है वो 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, 10 मल्टीप्लाई बाय x और 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6। ओके, तो 10 मल्टीप्लाई बाय x कितना आता है, 10x आता है, 10 मल्टीप्लाई बाय x 10x आता है, और 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आता है, 6। सो हियर राइट हैंड साइड में 10 मल्टीप्लाई बाय 0.666 है ना, इसलिए हम लोग इसको 6 कर देंगे। ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट हियर 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आएगा, 6666 से सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, तो 0.666 जो है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो ये जो डॉट है, क्योंकि कॉमन जो 6 था वो एक ही नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीटेटिवली सेम आ रहा है। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कैसा करेंगे आपको पता है, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इधर मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, सो अभी हम लोग इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी आपको पता है अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो डेसिमल पॉइंट जो था ना वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पर का वो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आगे आ गया, तो यहाँ पर हमको आंसर कितना मिलेगा, सिर्फ 6 मिलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 6.6 हो गया। ठीक है, 6.6 और उसके ऊपर एक बार दे दो। ठीक है, ओके, क्योंकि 0.6 और पर डॉट का मतलब ये कि जो 6 है वो बार बार रिपीट है, इसकी वजह से हमने ओनली 1 टाइम लिए, तो ये जो नंबर था वो एक नंबर के बाद पॉइंट आया, तो 0.66666 था, तो इसलिए हम लोगों ने 6.6 कर लिया क्योंकि वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, चलो अगर आप लोग मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो आपको 6.6 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपको वही सेम नंबर मिलेगा, तो x इज़ इक्वल टू, ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है,
अभी आपको इसको डिवाइड करके भी दिखाना है, ठीक है। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई 10, ठीक है, दोनों साइड को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो x इज़ इक्वल टू आपको लेना है 6.6 अपॉन 10। तो जब आप 6.6 अपॉन 10 करते हो, ठीक है, 6.6, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड और फर्स्ट को आपको डिवाइड करना है। सेकेंड जो है ना ये वाला सेकेंड 10x इज़ इक्वल टू 6.6 डॉट, इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 10x इज़ इक्वल टू 10x है और x की वैल्यू कितनी थी 10x माइनस x, 10x के अंदर से x को माइनस करना है, ठीक है। और फिर बाद में इधर 6.6 जो बार है, 6.6 जो बार है उसके अंदर से माइनस करना है 0.6 को, ओके, उसके अंदर से माइनस करेंगे 0.6 को। तो चलिए 10x में से अगर 1x चला जाता है तो कितना बचता है, आपको पता है 9x बचेगा, ठीक है। 10x में से सिंगल x गया तो कितना आएगा 9x, ओके। एंड नाउ 9x इधर लिखने के बाद 6.6 डॉट के अंदर से 0.6 डॉट माइनस करें तो आंसर आएगा सिर्फ 6, ओके, बिकॉज 6.6 डॉट के अंदर से अगर माइनस करते 0.6 डॉट तो इधर 6 माइनस 6 तो 0 हो गया और 6 माइनस 0 तो 6 होगा, 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 6 0 और 6 माइनस 0 6, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 6, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू, अभी हमको इसको डिवाइड भी करके दिखाना है, तो जो राइट हैंड साइड का नंबर है वो न्यूमरेटर है, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर डिनोमिनेटर। सो x इज़ इक्वल टू 6 न्यूमरेटर और 9 डिनोमिनेटर, ओके। तो पहले 6 बाद में 9। अभी 9 और 6 कौन से टेबल में आते हैं, एज यू नो दैट 3 के टेबल में दोनों डिवाइड होंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो 2/3 मिला। सो x इज़ इक्वल टू 2/3। इज़ दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो सिंपल एंड ईजी टू सॉल्व। यस माय डियर स्टूडेंट्स, पता चला आपको कितना सिंपल है इसको सॉल्व करना। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई आएगा। सो 0.6 डॉट का आंसर आया 2/3, ओके। p/q के फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन भी बोल रहा है ना रैशनल नंबर इन p/q फॉर्म में लिखना है, तो p/q के फॉर्म में आया 2/3। आई बात समझ में? ये जो 2/3 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। आई बात समझ में आपको? तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ में आया होगा। येस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ अभी मैं इसको अच्छे से रब करती हूँ और हम अब सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चन 2, ओके। तो ये भी मैं पूरा आपको रब करके दिखाती हूँ, ओके। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से इसलिए 100 से, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट से तो 1000 से। तो सब क्वेश्चन 2 में इसकी हेल्प ज़रूरत पड़ सकती है। 0.37 है, ठीक है। तो 0.37 यानी कि 2 डिजिट्स, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। सो 0.37 लिखे हमने, ओके। 2 डिजिट्स है ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टार्ट करते हैं ऐसा कुछ, लेट x इज़ इक्वल टू 0.37, ओके, 37 बार। लेट x इज़ इक्वल टू 0.37 बार, मतलब मान लीजिए कि x की जो वैल्यू है वो 0.37 बार है। अब नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, बिकॉज 0.37, सी माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से 37, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ द साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 100 लेना है, राइट हैंड साइड में भी 100। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0.37 को भी मल्टीप्लाई करना है 100 से। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.37 बार, ओके। सो ये 100 मल्टीप्लाई बाय x 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 37, कितना आएगा अगर इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई किया गया तो? यस, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो 37 जो है, ठीक है, 2 ये जो है ना 37, वो क्या आएगा, एक डेसिमल की जो वैल्यू 337 मतलब वो रिपीट होने वाला नंबर है, तो ये डेसिमल जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 37.37 हो जाएगा, ओके। 37, ये जो 0.37 था ना वो 0 हट जाएगा और 37 के बाद पॉइंट आएगा, वापस से 37 लिखेंगे क्योंकि 37 जो है वो कंटिन्यू है, तो वापस से ओनली 1 पैर लिखेंगे, 37.37। आई बात समझ में? सो x इज़ इक्वल टू 37.37, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अभी चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। सो सेकेंड को माइनस करना है फर्स्ट से, आपको पता है जैसे लास्ट सब्सपिंग किए थे, तो 100 को माइनस करो x के साथ, 100x माइनस xx, ओके, 100x माइनस x,
ओके, इज इक्वल टू 37.37 को माइनस करो 0.37 से, 37.37 को माइनस करो 0.37 से। चलिए अभी 100 में से 1x गया तो 100x में से 1x गया तो कितना बचा 99x। यू आर करेक्ट। इज इक्वल टू 37.37 में से 0.37 को माइनस किए तो बट ऑब्वियस सिर्फ 37 ही रहेगा ना, 37 माइनस 37 0, और 37 में से 0 गया तो 37, तो यहाँ पर आंसर आया 37। सो x 99x इज इक्वल टू 37। तो अभी जो ये 37 राइट हैंड साइड पर है ना बच्चों, उसको न्यूमरेटर लेंगे। इसको मैं इरेज करती हूँ ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर सके। ओके, पूरा इरेज कर दी। अभी 99x इज इक्वल टू 37 है, तो ये 37 न्यूमरेटर है और ये 99 जो है ना वो डिनोमिनेटर है। आप सबको पता है 37 एक कम्प्लीटली ऑड नंबर है, प्राइम नंबर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 के और खुद के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में 37 नहीं आता है। सो x इज इक्वल टू 37 अपॉन 100 इज़ द फाइनल आंसर। ओके, सॉरी 37 अपॉन 99 इज़ द फाइनल आंसर, क्योंकि 37 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में आता है, तो इसको यही स्टॉप करेंगे। x इज इक्वल टू 37 अपॉन 99, 100 माइनस x 99x, so 37 bar. Okay, x is equal to 37 bar is equal to 37 upon 99. P by Q is equal to 37 upon 99. Is that clear, my dear students? So simple and easy to understand. So 0.37 bar is equal to 37 upon 99 is the final answer. Okay, तो इसको ऐसा बॉक्स पे डालो ताकि पता चल सके कि ये फाइनल आंसर है। Isn't it very easy to understand this concept? Yes, my dear students. Now let us understand the last sub question, that is 3.17. As you all know that कि 4 और 5 जो है वो रिड्यूस किया गया है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड वाला है ना ये भी सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह ही है, सेम टू सेम सेकंड की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर 3.17 है, अगेन पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 होने वाला है। ओके, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसे ही कुछ, लेट x इज इक्वल टू 0.17। ओके, let x इज इक्वल टू 3.17, नॉट 0.17, 3.17 है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सब क्वेश्चन 3.17 बार, दिख रहा है ना आपको 3.17 बार, ये हम लोग सॉल्व करें तो इधर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 3.17 बार। मतलब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू 3.17 बार है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, देखिए 17, तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ द साइड, मल्टीप्लाई करना है हमको 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी 100 और राइट हैंड साइड पे भी 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। ठीक है, 17 यानी कि 2 डिजिट्स है तो 100, 3 डिजिट्स रहते तो 1000 लेते, और 1 डिजिट रहता है तो 10 लेते। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। सिमिलरली 100 मल्टीप्लाई बाय 3.17 हो जाएगा। ठीक है, और बार क्योंकि 17 बार बार आने वाला है, सो 100x इज इक्वल टू, अभी देखिए 3.17 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अभी ये 17 रिपीट होने वाला है ना, 317.17 देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 0.17 था ना, वो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और ये देखो ना यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ये 2 नंबर के बाद डिजिट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, डेसिमल, तो 317.17, आई बात समझ में, लास्ट क्वेश्चन की तरह। इज दैट क्लियर? तो ये 17 जो बार है वो ऐसे ही रहेगा 317.17, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे 17 है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा फर्स्ट था और ये सेकंड था। अब सब ट्रैक करेंगे दोनों को, तो सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट के साथ। आई बात समझ में? तो सेकंड क्या है, 100x माइनस एक्स, 100x को माइनस करना है x के साथ, इज इक्वल टू 3.17 को माइनस करना है 3.17 के साथ। ओके, तो अभी ये बार भी लेना है बराबर से। 100 माइनस एक्स कितना आता है, 99x आएगा, इज इक्वल टू 3.17 बार को माइनस करेंगे 3.17 बार से। चलिए माइनस करिए, आपको माइनस तो आता ही अच्छे से। तो यहाँ पर 3.17 तो माइनस किया तो 0 आया। ठीक है, और यहाँ पर तो 0 हो गया, और 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 314 आया आंसर। ओके, 314 इज़ द न्यूमरेटर और 99 डिनोमिनेटर है। सबको पता है ना, पर 314 न्यूमरेटर है और 99 जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, ठीक है, इस फॉर्म को हमको ऐसा लिखना है, x इज़ इक्वल टू 314 अपॉन 99।
ओके 314 अपॉन 99, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों ही कोई भी एक टेबल में नहीं डिवाइड हो पाएगा। तो 3.17 बार इज इक्वल टू P बाई Q, दैट इज इक्वल टू 314 अपॉन 99। तो फाइनल आंसर जो है वो 3.17 का है 314 अपॉन 99। ये हमने रैशनल नंबर के फॉर्म यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्लेन किए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ योर टास्क इज टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 all these sums in your maths 1 notebook. Remember that all these 3 questions, question number 4 and 5 are omitted from the reducing syllabus. Okay, so as per reducing syllabus, sub question 4 and 5 are reduced. Thank you for watching my video. Enjoy learning.